For our brief meditation today, आज शाम के मेडिटेशन के वास्ते let us turn our Bibles to Genesis 37. पैदाइश की किताब चैप्टर 37 हम देखेंगे। Let us read first 4 verses, all of us together. हम सब मिलकर पहली 4 आयतें हम पढ़ेंगे। Genesis 37 verses 1 to 4. पैदाइश की किताब चैप्टर 37 पहली 4 आयतें। And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. These are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah and with the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought unto his father their evil report. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. One more portion. और एक हिस्सा हम पढ़ेंगे Psalm 105. मज़ामीर की किताब बाब नंबर 105। Psalm 105. मज़ामीर 105। Let us read these verses responsively. बारी बारी से हम ये आयतें पढ़ेंगे। 16 to 19. 16 से लेकर 19 तक बारी बारी से। Moreover, he called for a famine upon the land. He brake the whole staff of bread. उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, योसेफ गुलामी में बेचा गया। Whose feet they hurt with fetters, he was laid in iron. जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ, यहोवा का कलाम उसे आजमाता रहा। May the Lord bless this portion. इस कलाम पर खुदावंद अपनी बरकत दें। It was written about a well-dressed man. एक इंसान के बारे में जो बहुत अच्छे लिबास पहना था, ऐसा लिखा हुआ था। A well-dressed man, he was walking briskly in the metropolitan pathway. एक अच्छे लिबास पहने हुए इंसान एक मेट्रोपॉलिटन सड़क पर जा रहा था। He was walking very briskly. वो बहुत तेजी से चल रहा था। And it was a crowded place. और वो क्राउडेड था, यानी बहुत सारे लोग वहाँ जमा थे। He was stopping in between. बीच बीच में वो रुकता था। He was talking to few people. कुछ लोगों से वो बात भी करता था। And he would say, और वो कहता था, I'm in trouble. मैं कुछ तकलीफ में हूँ। I didn't dream today. या ख्याल नहीं किया। Now I'm going to my psychiatrist's office. आज मैं एक साइकियाट्रिस्ट के दफ्तर में जा रहा हूँ। All that I'm trying to do is to borrow a dream from someone. मेरा ख्याल ये है, मेरी चाहत ये है कि मैं दूसरों से एक ख्वाब या रोया मैं उधार में लूँ। Do you have one? क्या आपके पास मुझे देने के लिए एक ख्वाब है? He was trying to borrow a dream from passers-by. जो अपने राह में मिलते थे लोग, बाजू में जो जा रहे थे, उनसे रोया या ख्वाब वो उधार मिलाना चाहता था। He was troubled because he didn't dream one night. उसके दिल में गम पैदा होने लगा क्योंकि एक रात वो उसको ख्वाब नहीं पड़े। We all have dreams. हम सबों को कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं। We all have aspirations. हम सबों को कुछ ना कुछ करने का तमन्ना रहता है। We have some goals. हम सबों के सामने कुछ ना कुछ मंजिल रहता है। Most of the time our thoughts are centered around how I can shape up my career so that I can meet my goals. हमेशा हमारे दिमागों में, दिलो दिमागों में या ख्याल या तसव्वुर पैदा होते रहते हैं कि कैसे मैं मेरी मंजिल तक पहुंच जाऊं। And there are certainly heaven sent dreams. और बहुत सारे आसमान से भेजे गए रोया या ख्वाब होते हैं। And also worldly delusions. और इस दुनियावी तशवीश से भरी हुई ख्यालात भी होती हैं। As Christian believers, we have to understand the difference between the two. और एक यीशुई ईमानदार होने के नाते इन दोनों के बीच का फर्क हमें जानना जरूरी है। Heaven sent dreams. आसमान से भेजे गए ख्वाब। And worldly delusions. और दुनियावी ख्यालात। Unless we understand the word of God, अगर हम खुदा का कलाम नहीं समझेंगे, unless we hear the still small voice of God, जब तक हम खुदा की धीमी आवाज को नहीं सुन पाएंगे, we may end up pursuing the worldly delusions.
तो हम इस दुनियावी ख्यालों में जो हमें धोखा देते हैं उन ख्यालों में हम पड़ जाते हैं। Heaven sent dreams are always inspired by the word of God. आसमान से भेजे गए ख्वाब या रोया जो होते हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक होते हैं। Somebody please read from 2 Peter कोई मेहरबानी करके पढ़िए पत्रस के दूसरे खत में से 1st chapter पहला बाब and 4th verse. और चौथी आयत। 2 Peter 1st chapter 4th verse. Somebody please read. पत्रस का दूसरा आम खत पहला बाब और चौथी आयत कोई मेहरबानी करके पढ़िए। Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these we might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Here we are given exceeding great and precious promises. यहाँ हम पढ़ते हैं कि हमारे वास्ते खुदा ने कीमती और निहायत बड़े वादे किए हैं। To each one of us, हम सबों में हर एक के लिए God is giving great and precious promises. खुदा बहुत कीमती और बेहद निहायत बड़े वादे कर रहा है। Why are these promises given? ये वादे खुदा ने क्यों दिया? So that we are partakers of His divine nature. ताकि हम खुदा की जात में हम हिस्सेदार हो जाएं। So that we can escape the corruption that is in the world through lust. ताकि इस दुनिया में जो बुरी ख्वाहिश है उससे हम दूर हो जाएं। And these promises are extremely going to be important in your life when you face the crisis. और जब आप अपनी जिंदगी में क्राइसिस में आते हैं तो ये बहुत अहम होता है कि इस खराबी से हम दूर चले जाएं। These are the end times. आज हम आखिरी दिनों में ठहर रहे हैं। Sooner or later you are going to find yourself in crisis. कभी कभार आप क्राइसिस में पड़ जाएंगे And you are going to face situations. और ऐसे हवाले में आप मुब्तला हो जाएंगे। You are going to face some turbulent times. आपकी जिंदगी में कुछ तशवीश की घड़ियां आ जाएंगी And there's going to be storms in your life. और आपकी जिंदगी में कुछ तूफान आने लगेंगे। And there will be overwhelming times. Overwhelming times. और कुछ ऐसे वक्त होंगे जब आप खुद रोने लगेंगे। And these situations will bring you down. और ये हालात आपको गिराने की कोशिश करेंगी। You will be disappointed with people. आप लोगों को लेकर बहुत गमज़दा हो जाएंगे। You will be distraught. आप दिलसोज हो जाएंगे। It is time for you to remember the wonderful promises that God has given unto you. और अगर ऐसी बात है तो खुदा ने जो बहुत बेशकीमत वादे आपके लिए किए हैं उनको याद करने का मौका अब मिल रहा है आपको। We just mentioned about the formative years in the first message. हमने पहले मैसेज में देखा था कि हम अब यीशुआ में तामीर होने के सालों के बारे में हम मुताला करने वाले हैं। Formative years are very important in anybody's life. किसी भी जिंदगी में तामीर होने वाले साल बहुत अजीम होते हैं, अहम होते हैं। When a child is born into this world, जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है parents will give utmost care unto that little baby. वालिदैन क्या करते हैं उस नवजात बेबी या बच्चे को लेकर बहुत अहम उस पर बहुत ध्यान देते हैं। All the nourishment जो भी तग़ज़िया and timely food और वक्त पे जो भी गिज़ा देना है and the entire care और जो भी केयर देना है and the entire focus is on that little baby. और उनकी पूरी नजर और निगाह उस छोटे बच्चे पर रहता है। They'll make sure that nothing is going to harm this little baby. और वो लोग इस बात पर बहुत ध्यान रखते हैं कि उस बच्चे पर कुछ अनजाने ना हो जाए। God is going to take care of you. खुदा आपकी हिफाजत करता है। And He starts the formative work in your life. और खुदा आपको रूहानी तरीके से तामीर करने का काम करता है। He starts forming the image of Lord Jesus Christ in your life. यीशुआ की शक्ल आप में तश्कील देकर आपको यीशुआ में तामीर करता है। He continuously speaks to you. खुदा मुसलसल आपसे गुफ्तगू करेगा। He shows to you और आपको दिखाएगा what is lacking in your life. कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है। What is that you have to set things right with God and man. खुदा के सामने और इंसान के सामने आपको किन चीजों को अच्छा बनाना है, सुधारना है। What are your weaknesses? आपकी कमजोरियां क्या है, especially in the life of faith. खुसूसन आपकी ईमान की या रूहानी जिंदगी में। If you have any other influence other than God, अगर आपकी जिंदगी में खुदा के सिवा और
कोई चीज आप पर तासीर हो रही है and God is going to let you know. तो खुदा आपको बता देगा। And when God speaks to you, जब खुदा आपसे बात करेगा, revisit your priorities in your life. आपकी जिंदगी में जो अहमियतें जो हैं आपके लिए, उन पर आप और एक बार गौर फरमाइए। Revisit the times that you are spending. खुदा से आप जो वक्त गुजार रहे हैं उसके बारे में फिर से आप एक बार सोचिए। Let us look at the life of Joseph quickly. हम बहुत जल्दी योसेफ की जिंदगी पर एक बार नजर करेंगे। In Genesis 37 we see पैदाइश की किताब बाब नंबर 37 में he was dwelling with his father Jacob. वो अपने बाप याकूब के साथ वो जी रहा था। He was the beloved son of Jacob, याकूब का बहुत प्यारा बेटा था वो, and he was feeding the flock with his brethren, और अपने भाइयों के साथ वो गल्लाबानी कर रहा था, and he was separated from his brethren. और अपने भाइयों से वो जुदा हुआ था, He used to bring the evil report of his brethren unto his father. और अपने भाइयों के बारे में जो भी बुरे खबर होते हैं, जो बुरे काम वो भाई करते थे, उसकी खबर बाप तक पहुंचा देता था। These are the early days of Joseph. ये योसेफ की जिंदगी के शुरू के साल थे। He was very diligent in his business. वो अपने काम में बहुत एहतियात से रहता था। He was not at all slothful. और वो बिल्कुल स्लॉथफुल नहीं था, यानी वो स्लॉथफुल नहीं था। He was working very hard. वो बहुत काम करने वाला था। Whatever has been entrusted unto us, जो भी उसके हाथ में दिया जाता था, and he was very faithful. वो बहुत ईमानदारी से निभाता था। So these are the early days of Joseph. ये योसेफ की जिंदगी के शुरुआत के साल थे। Now God gives him two dreams. अब खुदा दो ख्वाब उसे देता है। And these two dreams we find it in the 37th chapter. ये चैप्टर 37 में उन दो ख्वाब के बारे में हम पढ़ते हैं। And in the verse 7 we see about the sheaves. और हम देखते हैं कि आयत नंबर 7 में हम वहाँ शीव्स के बारे में, बांधे हुए खेत में बांधे हुए पुले के बारे में हम पढ़ते हैं। And in verse 9, और आयत नंबर 9 में one more dream on the sun, moon and the 11 stars making obeisance unto me. और एक ख्वाब है, उसमें सूरज, चांद और 11 सितारे उसके सामने सिजदा करते हैं। And through these dreams, और इन ख्वाबों के जरिए से God has given him, see what is going to happen in the later years. खुदा ने उसको दिखाया कि मुस्तकबिल में आने वाले सालों में उसके साथ क्या होने वाला है। And Joseph is going to be exalted over everyone. और योसेफ बहुत मुस्तकबिल में बाकी लोगों के ऊपर वो उठाया, मतलब उसका सरफरोश खुदा करने वाला है। In those days, God used to speak to the people through dreams. उन दिनों में खुदा ख्वाबों के जरिए लोगों से बात करता था। So when their brethren heard about this, तो जब उसके भाइयों ने इन ख्वाबों के बारे में सुना, they were very offended. तो वो लोग बहुत ठोकर खाए। They were trying for the right opportunity. तो उन लोगों ने एक ऐन वक्त के मुंतजिर ठहरे। In Genesis 37:12 we see, और पैदाइश की किताब चैप्टर 37 की आयत नंबर 12 में हम पढ़ते हैं, Joseph's brethren they went to feed the flock in Shechem. वहाँ हम पढ़ते हैं कि योसेफ के भाई शेकेम में अपने भेड़ बकरियां चराने जाते हैं। Then Jacob calls Joseph तब याकूब क्या करता है, योसेफ को बुलाता है and he tells him, और योसेफ से कहता है, come, I will send thee unto them. तो आ, मैं तुझे उनके पास भेजूंगा। And immediately he says, और फिलफौर वो कहता है, here am I. मैं तैयार हूँ। He loved his father वो अपने बाप से मोहब्बत रखता था, and he was always obedient to his father. हमेशा अपने बाप का फरमान बरदार बेटा ठहरा। So that's how he was the beloved son of Jacob. इसीलिए याकूब का वो बहुत प्यारा और लाडला बेटा था। So he went in search of his brethren. इसीलिए वो बाप की बात मानकर भाइयों को ढूंढने जाता है। He came to Shechem. वो शकेम को आता है, He could not find them. वहाँ वो लोग नहीं मिले। And somebody tells him, और किसी ने उससे कहा, they have moved away from this place. वो लोग यहाँ से चले गए हैं, And they have gone to a place called Dothan. और वो लोग दोतान तक पहुंच गए हैं। And he continues his journey. और वो आगे बढ़कर जाते रहता है। And finally he finds them. और आखिर में जाकर ढूंढकर उनको
पाता है। When he is coming near to his brethren, और जैसे ही वो अपने भाइयों के पास आने लगता है, they started conspiring against Joseph. वो याकूब के खिलाफ, योसेफ के खिलाफ बुरे ख्याल बांधने लगते हैं। Behold, this dreamer cometh. वो कहते हैं कि देखो ये ख्वाब देखने वाले आ रहा है। They are very offended because of his dreams. उन्होंने उसके ख्वाबों को लेकर बहुत अफंड हो गए थे। And they are also offended because his father has given him a coat of many colors. और इसीलिए भी वो लोग बहुत अफेंड हुए या ठोकर खाए थे उसके बाइस, क्योंकि उसके बाप ने उसे एक बुक लमून कबा दिया था। And they took him और उन्होंने उसे लिया and they cast him into a pit. और एक गड्ढे में उसे ढकेल दिया। And then around that pit they sat. और उस गड्ढे के इर्द गिर्द उन्होंने बैठा। Around that pit they sat and they started eating bread. और उस गड्ढे के इर्द गिर्द बैठकर वो लोग खाना खाने लगे। It's a moment that is very hard to imagine. ये ऐसा वक्त है जो ख्याल करने के लिए भी बहुत मुश्किल लगता है। These are all the sons of Jacob. ये सब के सब याकूब के बच्चे हैं। And they conspired against the beloved son of Jacob. और याकूब के प्यारे बेटे के खिलाफ ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। I don't know what was going through Joseph's mind in that time. अब उस वक्त याकूब के जहन में क्या बातें, क्या ख्यालात गुजर रही होंगी, मुझे तो पता नहीं। He came unto his own brethren उसने अपने खुद के सगे भाइयों के पास आया, in search of them उनको ढूंढते आया, because he was instructed by his father, क्योंकि उसके बाप ने उसे कहा कि ऐसा कर। seeking their own welfare. उनकी भलाई चाहते हुए वो आया। Finally, what happened to him? लेकिन आखिर में उसको क्या हुआ? And he was cast into a pit. उसको एक गड्ढे में उन लोगों ने ढकेल दिए। And he was sold for 20 pieces of silver. और 20 शकलीम के सोने के सिक्के लेकर उसको बेच डाले। And Jacob understands that see Joseph is no more. 20 चांदी के सिक्के लेकर बेच डाले और याकूब को पता चलता है कि अब योसेफ नहीं है। And now they started, their brethren, they started forgetting about Joseph. अब ये बाकी भाई लोग जो हैं उन्होंने योसेफ के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। Now Joseph is now a slave in an alien land. अब योसेफ एक नए मुल्क में वो एक बंदी बनकर जाता है। So what happens to such a person when he finds himself in such a situation? इस आदमी को इस तरह की हालत में पड़े हुए कैसा लगता होगा? So all those dreams, he may not find any usefulness with all those dreams. शायद जो ख्वाब और जो रोए उनको आए थे वो ख्वाब अब कुछ मायने नहीं रखते होंगे शायद उसको। He conducted well, when he was in the family. जब तक वो घर में था, खानदान के बीच में था, अपने आप को सही तरीके से उसने अपने आप को चलाया। He was a responsible child. वो फरमान बरदार रहा। He was diligent in business. वो कारीगरी में भी बहुत एहतियात से रहा। He was not slothful. वो स्लॉथफुल नहीं था। So many things might be going through in his mind. और इस तरह से बहुत सारे ख्यालात उसके जहन में गुजरते होंगे शायद। So many people when they go through these kind of situations, इसी तरीके से बहुत सारे लोग जब इन हालात में से गुजरते हैं, there is so much of bitterness that creeps into our hearts, into our lives. उनके दिलों में, दिलो दिमागों में, जहन में बहुत कड़वे ख्याल पैदा होने लगते हैं। It's not easy to get rid of this bitterness. ये इस कड़वेपन से दूर हटना बहुत आसान नहीं है। So what is that he got in return for his love? तो अपनी मोहब्बत के मुकाबले में उसको क्या मिला? He loved them. उसने अपने भाइयों से मोहब्बत जताई। He always sought their welfare. हमेशा उनकी भलाई चाही। But he was sold as a servant. लेकिन एक गुलाम की तरह उसको बेच डाले। See, this is where the heaven sent dreams are going to play in your life. देखिए इस तरह के हालात में ही आसमान से भेजे गए ख्वाब जो होते हैं वो काम करने लगते हैं। He continued to conduct himself well in Egypt. वो उसने क्या किया?
इजिप्ट में, मिस्रईम में अपने आप को सही तरीके से चलाने लगा, सही तरीके से जीने लगा। And from here onwards, see what was written about Joseph is the Lord was with Joseph. और यहाँ से हम पढ़ते जाते हैं कि लिखा हुआ है कि खुदावंद योसेफ के साथ है। His secret life was pleasing God. उसकी सीक्रेट लाइफ जो है, पोशीदा जिंदगी जो है, वो खुदा उनको पसंद आने लगी। His public life was pleasing unto the Lord. और बाकी लोगों के सामने वो जो जिंदगी जीता था, वो जिंदगी भी खुदावंद को पसंद आने लगी। When Potiphar's wife cast see her eyes on him, जब पोतीफर की बीवी योसेफ पर अपनी नजर डाली, he fled from her presence. उसने उसकी हुजूरी से वो भाग निकला। In a way, he was fleeing the youthful lust. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसने अपनी जवानी के ख्वाहिशात से भाग निकला। As young people, it is very important for us to flee from our youthful lusts. अजीजों, हमें याद रखना चाहिए, जवानी के ख्वाहिशात से दूर भागना जवानों के लिए बहुत अहमियत की बात है। We have to separate ourselves from this world. इस दुनिया से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। It is if you want Lord to be with you, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके साथ रहें, if you always want God's presence with you, अगर हमेशा खुदा की मौजूदगी आपके साथ आप चाहते हैं, please make sure that your public life as well as your secret life is pleasing God. आप जरा एहतियात से इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपकी पोशीदा जिंदगी और दूसरों के सामने आपकी जाहिरी जिंदगी भी खुदा के लिए पसंदीदा हो। Though he was doing good, वो तो बहुत अच्छा कर रहा था, भला ही कर रहा था, he was again put into prison. फिर भी उसको ले जाकर कैद खाने में ढकेल दिए। To cut the story short, और इस कहानी को हम छोटा बनाएंगे अभी। 2 more dreams. अब यहाँ 2 और ख्वाब पढ़ते हैं। And this time Joseph is not getting those dreams, और अब योसेफ को ये ख्वाब नहीं पढ़ते, but he is turning himself as an interpreter of dreams. लेकिन अब इन ख्वाबों का तर्जुमा करने वाले या उनका मतलब बयान करने वाले जैसा वो बन गया। And finally he was brought in front of Pharaoh. अब आखिर में फरो के सामने उसको ले जाया गया है। And Pharaoh says, और फरो कहता है, Genesis 41:38. पैदाइश Somebody की please किताब read. चैप्टर 41 वर्स 38, कोई मेहरबानी करके पढ़िए। Let me read. And Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this, a man in whom the Spirit of God is? तो फरो ने अपने खादिमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है। The ruler of the land says, मुल्क पर हुक्मरान जो है वो कहता है, Can we find such a one as this? क्या हमें इस कद्र का शख्स मिल सकता है। He was distinguished by the Spirit of God in him. उसमें जो खुदा की रूह है उससे वो दूसरों से मखसूस हो गया। Even Pharaoh understood that this is a man of God. फरो खुद पहचान लिया था कि ये मर्द खुदा है। He was set over all the land of Egypt. इसीलिए उसको मुल्क मिस्रईम के ऊपर उसको रखा गया था। Then comes the famine. अब फैमीन आता है। And finally God leads the children of Israel into Egypt. और आखिर में खुदा क्या करता है, इस्राएल के बच्चों को इजिप्ट में लाता है। Through several circumstances. उसमें बहुत सारे हालात निकलते हैं। What do we understand from all this? इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है। He was a chosen vessel. वो खुदा से मुकर्रर किया गया बर्तन है। He was a chosen vessel to preserve the chosen nation of Israel during famine. और फैमिन के दौरान, फाके के दौरान इस्राएल के लोगों को, बच्चों को, मुस्तकबिल में इस्राएल के मुल्क को बचाने वाला खुदा का एक बर्तन बन गया है। A chosen vessel to preserve the nation of Egypt during famine. फामीन के दौरान मिस्रईम के लोगों को भी बचाने वाले खुदा का बर्तन बन गया है। His own brethren, they planned to do evil against him. उसके खुद के सगे भाई खुद उसके खिलाफ बुराई करने के लिए सोचते थे। But God meant it unto good. लेकिन खुदा ने उन सारी चीजों को नेकी के लिए तब्दील कर दी। With this we understand that all things work together for good. इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सारी बातें मिलकर नेकी के वास्ते हमारी जिंदगी में तासीर होती हैं।
And see, we may be going through any turbulent situations in our lives. हमारी जिंदगी में किसी भी हौलनाक हालात में से हमें क्यों ना गुजरना हो, Any crisis. कोई भी हौलनाक हालात, And you may be going through situations. See, Joseph was going through the situations. याकूब जिस तरह के हालात में से गुजरता है, क्या शायद आप भी इस तरह की हालात में से गुजर रहे होंगे? You have to remember that he that is in you is greater than he that is in the world. लेकिन आपको याद रखना है कि जो आप में है वो दुनिया में जो है उससे ताकतवर है। God hath not given us the spirit of fear. खुदा ने हमको डरने की रूह नहीं अता फरमाई। God has given us the spirit of power. खुदा ने हमें ताकत की रूह अता फरमाई। Look at what's happening all around the world these days. आजकल देखिए आपके सामने दुनिया में क्या हो रही है, देखिए। Nation is rising up against nation. एक मुल्क दूसरे मुल्क के मुखालिफ होकर चढ़ रहा है। People are rising against people. लोग दूसरे लोगों पर चढ़ रहे हैं। People are fleeing their homes. लोग अपने घर छोड़कर भाग निकल रहे हैं। People are fleeing their cities. लोग अपने शहर छोड़कर भाग रहे हैं। Look at what's happening in Myanmar. म्यांमार में क्या हो रहा देखिए। Look at what's happening in Ukraine. यूक्रेन में क्या हो रहा है देखिए। What happened in Libya, Syria, Iraq. लीबिया, सीरिया, इराक में क्या हुआ देखिए। People are fleeing their homes. लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। These are the end times. ये आखिरी दिन हैं। All these have been prophesied in the Bible. बाइबल में पेशनगोइयां हैं कि ये सारी बातें ऐसे ही होंगी। Not only the earth, the heavens are going to shake. जमीन ही नहीं बल्कि आसमान भी हिला दिया जाएगा। God is going to shake the heavens. खुदा आसमान को हिला देगा। God is shaking the earth. अब खुदा जमीन को हिला रहा है। And if it is not anything that is not of the faith, अगर कोई भी चीज ईमान के बाइस की चीज नहीं होती, and if something is very loose, see in your life, in your life of faith, अगर आपकी ईमानदारी की जिंदगी में, ईमान की जिंदगी में अगर कोई चीज ढीला या कमजोर पड़ रही है, it is not going to stand the test. वो ढीला चीज जो होती है वो इस खुदा के टेस्ट में, आजमाइश में खड़ी नहीं हो सकती। It is very important for you to hold on to your faith. इसीलिए आपके ईमान को आपको जोर से पकड़ने की जरूरत पड़ रही है। You should not lose your faith. आपके ईमान को आपको छोड़ना नहीं है। You may lose your health. शायद आपकी तबीयत या सेहत खराब हो जाएगी। You may lose your wealth. शायद आपकी दौलत आपसे निकल जाएगी। But faith is something so precious in the sight of God. लेकिन खुदा की नजर में ईमान बहुत बेशकीमत चीज होती है। And we should not lose our faith. और हमारे ईमान को हमें किसी भी तरह छोड़ना नहीं है। It is through the faith that we are going to shake the mountains. क्योंकि ईमान के जरिए से ही हम पहाड़ों को हिला देंगे। It is through the faith we are going to fly over the circumstances. और ईमान के जरिए से ही हम हर हालात में, हर हालात पर हम उड़कर चले जाएंगे। It is by giving all the glory to God, putting our trust in Him. और हर हालात में हम खुदा पर ईमान के जरिए से ही हम अकीदा रखते हैं। You should not lose your faith. इसीलिए ईमान को कभी खोना नहीं है। For great is going to be your reward. क्योंकि आपका रिवार्ड जो है वो बहुत बड़ा होगा, आपका अज्र बड़ा होगा। Let us turn our Bibles to Hebrews 12th chapter. देखिए हम खुदा के कलाम में इब्रानियों की किताब बाब नंबर 12 पढ़ते हैं। 12:26, all of us together. इब्रानियों की किताब चैप्टर 12 और वर्स नंबर 26 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. एक बार फिर मैं फकत जमीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा। Here God is saying, यहाँ खुदा फरमा रहा है, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. एक बार फिर मैं फकत जमीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा। So that means even your faith is going to be shaken. इसका मतलब यह है कि शायद आपका ईमान भी हिल जाएगा। And it's not going to be easy to have hope in this world. इस दुनिया में उम्मीद रखना इतना आसान नहीं है। Looking at the hatred, इस दुनिया में तो बहुत बुग़्ज़ है। and looking at the intolerance, इस दुनिया में लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। and looking at all the treachery, और इस दुनिया में लोग
कीना से आगे बढ़ते हैं and the deceitfulness. और धोखेबाज लोग होते हैं। Many times we feel we are very lonely कभी कभार हमें लगता है कि हम अकेलेपन में आ गए हैं and we are very disappointed और बहुत दिलसोज बन जाते हैं and we are very distraught. और हम गमज़दा हो जाते हैं। Please take courage. लेकिन धीरज जमा रखना, You are not alone आप अकेले नहीं हैं, and you are in a great company आप बहुत सारे लोगों के झुंड में हैं, and you are in the plan of God आप खुदा के तसव्वुर में हैं। and God is not going to disappoint you खुदा आपको गमगीन नहीं छोड़ेगा। and it is very too soon to quit जल्दी ही खुदा को छोड़ना बिल्कुल मना है। and it is very too soon to quit. सच में ही जल्दी ही छोड़ना या खारिज हो जाना मना है। Sometimes if you feel that see I cannot continue in this any longer कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं शायद आगे नहीं बढ़ूंगा I cannot take this any longer. और मैं इसे और ज्यादा वक्त मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ I cannot forbear anymore. और मैं झेल नहीं सकता हूँ, I want to quit. मैं खारिज होना चाहता हूँ। Several years ago it happened to me. बहुत सारे साल पहले मुझे भी ऐसा ही हुआ था। I put down my papers in the office मैंने दफ्तर में जाकर इस्तीफा दे दिया, and I could not take it any longer. मैं उसे झेल नहीं सका। I came out of the job मेरा काम छोड़कर बाहर आ गया and see I never had a good direction from God to resign that time. उस वक्त इस्तीफा देने के लिए खुदा से मुझे रहबरी नहीं मिली थी। I could not take the discipline of God खुदा का डिसिप्लिन जो है वो मैं लिया नहीं था and I quit. और मैंने इस्तीफा दे दिया। And see all the discipline that see I was going through और उस वक्त जो डिसिप्लिन के दौरान में गुजर रहा था and some of my prayers were और उस वक्त मेरे कुछ दुआएं ऐसी थीं, leave me God खुदा मुझे छोड़ देना, and I want to quit. मैं खारिज होना चाहता हूँ। Then one day तो एक दिन ऐसा हुआ, I went to a Christian shop. मैंने एक क्रिश्चियन शॉप को गया था। I purchased a book मैंने एक किताब खरीदी and the book the name of that book was और उस किताब का नाम ऐसा था Too Soon to Quit. खारिज होना, जल्दी खारिज मत होना, Too Soon to Quit. टू सून टू क्विट था उसका नाम। And in that there were something written about 14 men of God वहाँ खुदा के 14 बंदों के बारे में लिखा हुआ था and it was written about Joseph as well. उसमें योसेफ के बारे में भी लिखा हुआ था। And that's the same instance that I have taken from where I have shared with you the man who was trying to borrow a dream from someone. और जो हवाला मैंने आपको बताया था कि एक इंसान है जो दूसरों से एक ख्वाब लेना चाहता था, उधार में लेना चाहता था, वो हवाला उसमें था। And that's how God inspires us. और देखिए इस तरीके से खुदा हमको इंस्पायर करता है। And God will inspire you to come back to God's ways. और खुदा के राहों पर फिर आने के लिए खुदा आपके दिल में एक ख्वाहिश पैदा करता है। And coming back is not always easy. और खुदा के पास वापस आना इतना आसान हमेशा नहीं है। God is going to send you back to the same place where from where you stopped pursuing him. खुदा को कहाँ से आपने उसकी पैरवी करना छोड़ दिया, उस मकाम तक खुदा वापस आपको पहुंचा देगा। Our heavenly Father is a wonderful disciplinarian. हमारे आसमानी बाप जो हैं वो बहुत अच्छा डिसिप्लिनेरियन है। At any cost, he is not going to take out the discipline from your life. किसी भी हालत में वो आपकी जिंदगी में से ये डिसिप्लिन जो है वो निकाल नहीं देगा। Endure hardness. इसीलिए हमें तकलीफों को झेलना अच्छा होता है। Endure hardness as the good soldier of Lord Jesus Christ. यीशुआ के अच्छे सिपाही बनकर तकलीफों को झेलना है। And he is not going to disappoint you. और खुदा आपको गमज़दा नहीं छोड़ेगा। And when you look back, और जब आप वापस मोड़ कर देखेंगे, and I really thank God for all those opportunities that God has given us. मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि खुदा ने हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिया है। And God is the God of new beginnings. और हमारा खुदा हमेशा नए शुरुआत का खुदा है।
Probably you might have failed him, शायद आप खुदा की बातों में खुदा से छूट गए हैं, but he is not going to fail you. लेकिन खुदा आपसे छूट नहीं जाएगा। He is going to remind you about the heavens and dreams. खुदा आपको बार बार याद दिलाएगा कि आसमान से भेजे गए ख्वाब आपकी जिंदगियों में हैं। The wonderful promises that he has given unto you. खुदा ने जो बेशकीमत वादों को जो आपको दिया है, Don't quit. इसीलिए खारिज मत हो। If you have any thoughts of quitting, please take them out in your life. अगर आपकी ज़िंदगी में खारिज होने के बारे में कुछ ख्यालात हैं तो आपकी ज़िंदगी में से उन ख्यालात को निकाल दीजिए, उनको खारिज कीजिए। If you have any question, if you are questioning God why, please take out that why from your life. अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा से सवाल करने का ख्याल है कि खुदा क्यों, उस ख्याल को, उस क्यों को निकाल दीजिए And show obedience unto God's word. और खुदा के कलाम के फरमान बरदार हो जाइए। God is going to perfect the work that He has started in your life. आपकी ज़िंदगी में जो भी काम खुदा ने शुरू किया है उसको खुदा ही कामिल बनाएगा। Philippians 1:6. फिलिपियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 6, Let's read it all of us together. हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Philippians 1:6. फिलिपियों के नाम लिखा गया खत, पहला बाब और आयत नंबर 6। Being ताकि confident उसके of उस this फजल के very thing, जलाल that की which सिताइश He हो, which hath जिसे begun हमें a उस good work अजीज in you में will मुफ्त perform it until the day of बख्शा। Jesus Christ. God has begun a good work in us, खुदा ने हमें एक अच्छा काम शुरू किया है and He is going to perform it until the day of Jesus Christ. और हमारे खुदावंद यीशुआ के दिन तक वो उसे पूरा करेगा। And please cling on to His promises. इसीलिए उसके वादों से आप चिपके रहिए, Stand firm. और मजबूत खड़े हो जाइए। And though people mock you शायद लोग आपको ठट्टों में उड़ाएंगे because of your convictions, क्योंकि आपके दिल में जो भी ख्यालात हैं उनको लेकर, please don't quit. लेकिन आप खारिज मत हो जाइए। Just cling on to His promises. सिर्फ और सिर्फ खुदा के वादों से चिपके रहिए। He is going to strengthen you. खुदा आपको मजबूत बनाएगा। Let us read a few verses from 1 Corinthians 11 chapter. देखिए पहले कुरिन्थियों की किताब 11वें बाब से हम कुछ आयतें पढ़े। 23 to 26 23 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे alternatively. बारी बारी से। For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। After the same manner also He took the cup when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। And we have a table in our maze. हमारे दरमियान एक मेज रखी गई है। And God has demonstrated His love. खुदा ने अपनी मोहब्बत इस मेज के दौरान हमें याद दिला रहा है। And there is a broken body. और ये एक तोड़ा गया बदन है। And the blood that was shed for our sins. और हमारे गुनाहों के खातिर बहाया गया खून भी है। When we take part in Lord's table, जब हम खुदा की मेज में हाथ डालेंगे, remembering God खुदा को याद करते हुए and His wonderful love towards us, और हमारे ऊपर उसकी अजीम मोहब्बत को याद करते हुए, and this is where we gather every Lord's day. और हर खुदा के दिन इतवार को हम यही इकट्ठे होते हैं। We drew strength from Lord's table. खुदा की मेज में से हम ताकत लेते हैं। This is where we set things right with God and man. खुदा के सामने और इंसानों के सामने भी हर बात को हम सुधार लेते हैं। Not only during this time, इसी वक्त में ही नहीं, when see we have done anything wrong, अगर हमने कुछ गलत कर दिया, we need not wait for the Lord's day. खुदा के दिन तक हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। And we need to maintain short accounts with God. खुदा के सामने छोटे शॉर्ट अकाउंट्स हमें रखने हैं। It is very important. छोटे हिसाब रखना अच्छा होता है। If you have done anything wrong, अगर आप कुछ गलत कर दिए, please don't wait for a week or month. देखिए आप एक हफ्ते तक या एक महीने तक रुकिए नहीं। See, to the extent possible, see, you have to set things right with God and man. जितना हो सके उतना
उतना आप खुदा के और इंसान के सामने चीज़ें या हालात सीधा कीजिए। That's how you can have close communion with God. इस तरीके से खुदा से आप बहुत गहरी रिफाकत रख सकते हैं। So when we look back at the life of Joseph, अगर हम एक बार फिर योसेफ की जिंदगी देखेंगे, and he faced so many situations in his life, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे तकलीफों को और हालातों को झेला and his world was falling apart. और उसकी दुनिया टूट रही थी, He kept focusing on what he was pursuing. लेकिन वो हमेशा उस पर नजर कर रहा था कि वो किसकी या किस बात की पैरवी कर रहा है, And he was not taking his eyes off the target. और जो मंजिल है उस मंजिल से उसने कभी भी अपनी नजर नहीं हटाई। And just because his eyes were always on the target, और क्योंकि उसकी आंखें हमेशा मंजिल पर थीं, he was a mighty blessing to the chosen nation of Israel. वो मऊदा मुल्क कबीले इस्राएल के लोगों के लिए वो बहुत बड़ा बरकत बन गया। And endure hardness today. आज तकलीफों को झेलो। It may be very hard for you today, शायद तेरे लिए आज का दिन बहुत तकलीफ का दिन है, but this travel is going to bring out lot of good things out of your life. लेकिन मुस्तकबिल में इस तकलीफों के दौरान जो आप आज गुजर रहे हैं, बल्कि मुस्तकबिल में इसके जरिए से बहुत सारी नेकी पैदा होगी। Lot of people are going to have abundance entrance into the kingdom of God. बहुत सारे लोग खुदा की बादशाहत में बहुत बड़ी एंट्रेंस उनको मिलेगा, Just because you did not quit, क्योंकि आपने खारिज नहीं हुआ, just because you have clung on to the promises of God, क्योंकि आपने खुदा के वादों से चिपके रहा, just because you have always trusted God and His promises. क्योंकि आपने हमेशा खुदा को और खुदा के वादों पर यकीन रखा। May God bless this portion. खुदा इस कलाम पर अपनी खास बरकतें बख्शे।